सांसद धर्मवीर सिंह का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। केंद्र की योजनाएं रही हैं, उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक काम करवाया है। नए नए रोड निकले हैं। जहाँ तक बेरोजगारी है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा सके। तो इंडस्ट्री जो है वो कम लगी है, जिसके कारण दिक्कतें युवाओं को आगे आ रही हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपका एमपी। इसमें हम बात करेंगे आपके संसदीय क्षेत्र की, इसमें हम बात करेंगे आपके एमपी की, कि आपके एमपी ने आपके संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है, और जानेंगे एमपी साहब की पूरी रिपोर्ट। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ 2004 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਿਵਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਸਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ 올림픽ਸ ਤੱਕ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਦਮਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕਿਊਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹੀਰਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋਹਾਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੇ ਬਾਢੜਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਨੌਲ, ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਟੇਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15,66,494 ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ 7,34,883 ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੋਟਰ 8,31,608 ਸਨ। ਇਹ ਸੀਟ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਭਿਵਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੀ ਸੀ। ਚੌਧਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2009 ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਾਵਤੀ, 1980 ਅਤੇ 84 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਲ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ, 1991 ਵਿੱਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, 1996 ਅਤੇ 98 ਵਿੱਚ ਹਵੀਪਾ ਤੋਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 1999 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 3,02,817 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਹਜਕਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ 4,04,542 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਵ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7,36,699 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ 2,92,236 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਤੀ ਯਾਦਵ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। 4,44,463 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ SYL ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। चलिए बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह से कि आखिर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया। चलिए मेरे साथ। तो हम आ पहुंचे हैं दक्षिणी हरियाणा के संसदीय क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह जी से बात करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि धर्मवीर सिंह जी किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों की काफी अपेक्षा होती होगी आपसे कि आपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना, लोगों की समस्याओं को हल करना। तो मैं आपसे सीधा जानूंगा कि आपने अपने संसदीय क्षेत्र में इतने वर्षों में क्या कुछ किया। देखिए, ये प्रदेश का एक आखिरी कोने पर पार्लियामेंट क्षेत्र है। नया क्षेत्र है महेंद्रगढ़ भिवानी। पहले भिवानी लोकसभा क्षेत्र अलग था। महेंद्रगढ़ पहले गुड़गांव लोकसभा का पार्ट था। हम दिल्ली से ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। रॉ मटेरियल के हिसाब से हमारे पास कुछ नहीं है। हमें जो फायदा मिलेगा वो केवल दिल्ली का फायदा ले सकते हैं हम। और वो क्योंकि पहले कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं थी। पहले हमारे यहाँ कोई नेशनल हाईवे नहीं था, टूटी फूटी सड़कें थी। अब मेरी लोकसभा में लगभग 8 नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं। नांगल चौधरी के अंदर एक बड़ा हब बनाया है, लॉजिस्टिक हब, और उसकी कंप्लीट जाल बिछा दिया, जमीन ले ली। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वहाँ इंडस्ट्री का हब बनेगा। इसी प्रकार एक खुडाना में IMT के लिए जमीन सरकार ने ले ली पंचायत से। तो बड़े बड़े उद्योग, दिल्ली एयरपोर्ट से हम सीधे भिवानी, दादरी, नारनौल कैसे पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है इसका आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से ट्रेनें आप देखते होंगे, कॉरिडोर, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, उसका हमारा ये पार्ट चालू हो चुका है। वो भी हमारा नांगल चौधरी जो हब बन रहा है वहीं से कनेक्ट हो रहा है। यही जाएगा बाद में कलकत्ता तक, यही कॉरिडोर। और उस कॉरिडोर में केवल पैसेंजर ट्रैक नहीं है, वो उसके गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी कम समय में पूरा सामान सस्ते रेट पर कैसे आ सकता है, वो कॉरिडोर है। मैं मान के चलता हूं कि हमें धीरे धीरे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की थी, आज भी है। पानी के लिए सरकार ने जो कभी नहरें 75 से पहले चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री होते थे तब बनी थी, दोबारा से उनका रिमॉडलिंग का काम हुआ है तो इन 9-10 सालों में हुआ है। और पिछले 9-10 साल में जो आप देखोगे जो पानी वाटर लेवल हमारा इतना नीचे चला गया था महेंद्रगढ़ जिले का, आज वो वाटर लेवल तकरीबन जिलों में, तकरीबन गांव में, कुछ गांव अगर हम छोड़ दें तो वाटर लेवल इन हालात में भी हमारा ऊपर आया है। हेल्थ के नाम पर केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, जनरल हॉस्पिटल हैं, CHC हैं, PHC हैं, सब हेल्थ सेंटर हैं। जिस तेजी से हेल्थ पर काम हुआ है, एजुकेशन में देखोगे तो हर 10 किलोमीटर के बाद, यानी दायरा है 20 किलोमीटर का, लड़कियों की कॉलेज के लिए भी प्रदेश की सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस बना दिए। किसान के लिए जो पहले जिस फसल पर हम ध्यान नहीं देते थे, लोगों की आदत थी चावल गेहूं खाने की, हमारा इलाका तो चना, बाजरा, मोठ, मूंग ये था। और अब ये मोटा अनाज, जिस बाजरे का रेट हम जब 2001 में थे तो मात्र 230 रुपये क्विंटल था, आज वही 2500 रुपये क्विंटल हो गया। अब ऐसी ऐसी ट्रेनें हमारे तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, लोहारू से, भिवानी से हम देश के किसी कॉर्नर पर कहीं जा सकते हैं, थोड़े समय में जा सकते हैं, अच्छी रेल में जा सकते हैं। वो चाहे वो रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, डबल ट्रैक की बात हो, स्टेशनों को जाके देखोगे तो उनका रूप ही अलग बनने लग रहा है। यानी हर जगह हर चीज में एक नई दिशा दी है इस सरकार ने। अब देखिए, मेरे बारे में सबको मालूम है कि किस तरीके से पानी का काम किया है। जो आज भी जो लोग जो पानी पी रहे हैं, ये क्योंकि मेरे वक्त वो काम हुआ था। अगर वो काम हम लोग नहीं कर पाते किसी कारण, तो इन लोगों ने तो वो भी नहीं करना था। वो उन्होंने आराम फरमाया, वो वेट कर रहे हैं अगले चुनाव के लिए। और MSP नहीं मिल रहा लोगों को।
मेरे ख्याल से जो मेरे पास खबर आई है कम से कम 500-600 रुपये का घाटा हो रहा है लोगों को। और ऐसे माहौल में एमपी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, कहाँ हैं? दक्षिण हरियाणा के लिए मुख्य मुद्दा है नहरी पानी का। तो सर्दियों में लोग पानी को, पीने के पानी को तरसते रहे। कोई केंद्रीय योजना सांसद यहाँ लागू नहीं करवा पाए। सांसद के कार्यकाल में धर्मवीर जी के जहाँ तक बेरोजगारी है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा सके, ना ही महंगाई रोकने के लिए कोई कदम उठा पाए, और ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री इस एरिया में आई कि रोज़गार लोगों को मिल सके। हाँ, जहाँ तक प्रश्न है रेलवे का और राष्ट्रीय राजमार्गों का, उसमें धर्मवीर जी की भूमिका अच्छी रही। जो केंद्र की योजनाएं रही हैं उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक काम करवाया है। नए नए रोड निकले हैं, एक नया हाईवे निकला है, उससे काफ़ी भिवानी वासियों को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। मेडिकल कॉलेज भी आज बनने की कगार पे है, वो भी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। जिले के सबसे बड़ी मांग मेडिकल कॉलेज की थी। बीजेपी सरकार ने मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करवाकर एक अच्छा काम किया है। सांसद धर्मवीर सिंह का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। जो भिवानी में सिटी स्टेशन है उसका उद्धार हुआ है अभी, ठीक है, जीर्णोद्धार हुआ है। और सिटी स्टेशन का जीर्णोद्धार होने से जो हिसार से जो मालगाड़ियाँ थी जिनको वाया मतलब भिवानी स्टेशन से होके और फिर वापस फिर उनको रोहतक की तरफ निकालना पड़ता था, वो सीधे ही सिटी स्टेशन से रोहतक की तरफ निकल रही हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी मांग थी भिवानी की, वो सबसे बड़ी मांग थी इंडस्ट्री की। हालांकि देखो, अगर भिवानी में रोज़गार के अवसर की बात की जाए, सरकारी नौकरियां बेशक से मिली हैं। जो व्यक्ति मेहनती थे उन लड़कों को, उन बच्चों को ज़रूर नौकरी मिली है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, हालांकि हमारी सरकार ये भी कहती है कि नौकरियां देने वाले बनो, तो इंडस्ट्री जो है वो कम लगी है, जिसके कारण दिक्कतें युवाओं को आगे आ रही हैं। आपकी सरकार हरियाणा में है, केंद्र में है, आप भाजपा के सांसद हैं, तो ये SYL कब आ रहा है? पंजाब अपनी बात पर रहा है कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक सीधी बात कहता है, पानी की बात में करना, पहले नहर तो बनाओ। इन बातों का समाधान केवल 2 या 3 है, क्योंकि देश एक है। या तो ये जो मैटर है, पानी का मैटर, ये सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट होना। अब हमारे पास एक पानी और है। इस यमुना पर 3 जगह ऐसे पॉइंट हैं, किसाऊ, रेणुका, किसाऊ और तीसरा नाम है, जहां पर ये स्टोरेज बन सकते हैं, बांध बन सकते हैं। 2 के समझौते तो हो चुके हैं, तीसरा जिसमें ज्यादा पानी है उसका समझौता नहीं हुआ है। और उम्मीद करते हैं जिस दिन वो बन जाएगा तो हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा रिलीफ। वैसे तो बड़े नदी जोड़ने में एक प्रोजेक्ट और भी है, शारदा यमुना प्रोजेक्ट जिसका नाम है, जिसका पानी लास्ट बॉम्बे तक जाना है, थ्रू राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक। लेकिन वो एक लंबी परियोजना है और मैं मान के चलता हूं उससे बहुत बड़ा रिलीफ हमें मिलना है। तब तक हम मिलजुल के, क्योंकि पंजाब का पानी भी आपको तब मिलेगा, जहां मेरी सोच है, जब तक कंडी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं होता। कंडी क्योंकि J&K और पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है, जहां 5 नदियों का बचा हुआ पानी, बारिश के दिनों में जो पानी बच जाता है, वो जो हमें बाढ़ के तौर पर जाके आगे खराब करता है, उसके ऊपर एक कंडी का प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा है। वो पूरा हो जाएगा तो उस पानी को हम पंजाब को दे सकते हैं, हमारा हिस्सा हम पंजाब से ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे जल्दी ये मामला सुलझेगा। दूसरा सवाल ये है कि अहिर रेजिमेंट की मांग काफी लंबे समय से आ रही है और आपके जो इलाका है वहाँ के लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं। आपने भी कई दफा ये मुद्दा उठाया है, समस्या कहाँ आ रही है? इसलिए मेरा अहिरवाल का वो सारा क्षेत्र खेती हर किसान का है और सबसे ज्यादा वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। आज भी हर परिवार में आपको फौज का सिपाही मिलेगा। ये हमारी जायज मांग है। मैं तो कहता हूं इसमें हमने डिले नहीं करना चाहिए, इसको बहुत जल्दी ये अहिर रेजिमेंट बना देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमें जवान को और ज्यादा किसी नाम से मजबूती देनी पड़ेगी। और एक सवाल ये कि इतने लंबे समय से आप सांसद रहे, कोई बड़ा उद्योग आपके क्षेत्र में आया हो, इसका लाभ लोगों को मिला हो? हमारे अब 2
मैंने बताया IMT मंजूर हुई है, खुडाना और नांगल चौधरी लैंड ले ली गई है और उम्मीद करते हैं कि फिर इसी दिल्ली का फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अड़ोस पड़ोस में महंगी जमीन है, वहाँ सस्ती जमीन है। लोग कहते हैं कि भाई नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, जीत जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। मगर हमने आपका फीडबैक लिया, हमने जाना कि आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। ऐसा है, इस बार तो 2-3 साल तो हमारे को कोविड ने मार दिया यार। इस कोविड ने सारी देश और दुनिया को ऐसा तहस नहस किया, एक आदमी दूसरे आदमी से नहीं मिल पाया। और जो पैसा था वो तो स्टेट का हो, सेंटर का हो, हमने जैसे अपना MP लेट था वो भी 1 साल का तो हमने हेल्थ को दे दिया, 2 साल का हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से दे दिया, तो 3 साल का तो सारा MP लेट ही देना पड़ा हमें। कितना दिया? पूरा आपने लगाया, पूरा अपना फंड? हमारे पास अब कोई पैसा बच ही नहीं रहा। हमने इस 10 साल में, क्योंकि 1 साल का हेल्थ को देना पड़ गया, 2 साल MP लेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों का लिया था और हमने दिया था। तो पहले जो अनाउंस किया हुआ था वो पैसा, मेरी समझ में अगर आप सारे देश का देखोगे, सबसे पहले हमारा MP लेट मेरा खर्च हुआ है सबसे पहले। आप किसी का निकलवा के देख लो। आम जनता ये जानना चाहती है ना कि हमारे MP को जो पैसा मिलता है वो हम पर कितना लगाते हैं। लग ही नहीं सकता दूसरी जगह, मैं कहता हूँ दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। कुछ बचा तो लेते होंगे कुछ MPs? कैसे बचाएंगे? बचाने वाले बचाते ही होंगे। जिसके नहीं लगे, जिसका पैसा खर्च नहीं होगा, वो सरकार फिर नया MP चुन किया जाएगा, उसके पास चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सांसद ऐसा हो, मैंने हरियाणा में तो नहीं देखा कि जिसका पैसा बचेगा। क्यों बचेगा? तो अनाउंसमेंट ज्यादा और कर लेता है। आपके क्षेत्र में हम खबरें भी सुनते आए हैं, भू माफियाओं का बहुत राज है, और एक कुछ खबरें भी आई थी बीच में, कोई बड़े बड़े अधिकारी एक बुलडोजर से किसी को चढ़ाकर मार दिया था, और एक खबर आई थी कि मतलब लोगों को दबदबा है, प्रशासन सतर्क है, मगर आप कुछ कर रहे हैं। नहीं, भू माफिया नहीं, माइनिंग का हमारे खान्यक है, डाडम है, नांगल चौधरी है, दादरी में हमारी जो सूखे पहाड़ हैं वहाँ माइनिंग होती है, जो ये बिल्डिंग मटेरियल होता है, दिल्ली में भी आता है आपका। वहाँ पर स्वाभाविक है कि कुछ ही लोग इस प्रकार के माफिया बन जाते हैं। आज से नहीं, शुरू से हम देख रहे हैं। और ये ठीक बात है, एक बार तो 7-8 लोग डाडम में मरे थे इसी प्रकार से। माइनिंग को बड़ी गहरा 500 फीट 700 फीट तक का पानी निकाल के, तोड़ के पत्थर से निकाल लिया था। तो वो चीजें तो अब वो CBI या सुप्रीम कोर्ट या ED के पास चले गए वो केस। तो इसी प्रकार नांगल चौधरी के आसपास भी कई बार हादसे होते हैं। सही बात है ये। इसको कुछ लगाम लगेगा तो वो हम अपनी तरफ से चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट तक को भी लिखते हैं, प्रदेश की सरकार को भी लिखते हैं, और प्रदेश की सरकार भी कोशिश करती है कि उसके ऊपर लगाम लगे। चलिए, हमें अच्छा लगा, आपने नकारा नहीं, आपने स्वीकारा कि इस तरह की चीजें हैं और उस पर काम हो रहा है। नहीं है, देखो जो है वो तो सबको दिखाई देगा। चलिए, एक सवाल ये कि अब मेरा आखिरी सवाल है कि अब जब चुनाव में उतरेंगे तो एक बार शायद हो सकता है दोबारा श्रुति चौधरी से सामना हो, क्योंकि श्रुति चौधरी जी तो लगी हुई हैं, मगर दान सिंह जी भी इसमें लगे हुए हैं। किस तरीके से देखते, चुनौती होगी? हर पार्टी में कई उम्मीदवारों का मन करता है और लड़ना भी चाहिए। अब वो पार्टी किसको टिकट देती हो तो उनका मैटर है। मैं तो अपनी कह सकता हूँ, मैंने तो पार्लियामेंट चुनाव, क्योंकि मैं अब MLA नहीं लड़ना चाहता, केवल लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। और लोकसभा के लिए मैंने कह भी रखा है हाईकमांड को कि मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे धर्मवीर सिंह जी, आपके सांसद, आपके MP, जिन्होंने News 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, News 18।